students, my name is Pooja. Here I am with the new topic. But before moving further, as you all requested from our earlier topic, some concepts were not clear. हमारे last topic जो था vowels and consonants, use of articles a and n, उसमें से थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं थे जो कि हम पहले समझ लेंगे. नाउ what was our earlier topic was vowels and consonants. Vowels are 5, that is A, E, I, O, U, and the rest 21 from the English alphabets are consonants, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में. Now moving to the examples, that is man, chair, table and book, जो कि हम easily समझ सकते हैं. But the exceptions, the two examples, the last two examples are unicorn and useful book, जो कि थोड़े से confusing है. आप सोच रहे होंगे यहाँ पे the word unicorn starts from the letter U, so why that has not been placed under vowel मगर consonant के अंदर place किया गया है Q. The unicorn word starts from the letter U. ये start होता है letter U से, but U तो vowel है. But then also I have placed this under the topic consonant. Why? Students, always focus on the pronunciation, always focus on the sound. If I speak unicorn तो ये हो जाता है य, तो always remember the thumb rule. जितने भी सारे words sounds like य, what sounds like य, that's been placed always under consonant. वैसे ही दो एग्जाम्पल्स हमने वॉवल में भी देखे थे. कौन से दो? आर एंड ऑनेस्ट बॉय. बट व्हेन आई स्पीक आर द एच वॉज साइलेंट आर, तो अगेन ओ क्या हो जाता है? वॉवल. द सेम अप्लाइज हियर. लाइक इफ आई स्पीक यूनिकॉर्न, इफ आई स्पीक यूजफुल बुक, इफ आई स्पीक यस, तो वो सारे के सारे साउंड होते हैं य से. तो ऑलवेज पुट दोज वर्ड्स when it sounds like year, always place those words under consonant. I hope कि ये topic आपको clear हो गया होगा. Now moving to our further topic, for the new topic of the day is nouns, naming words. Now what is noun? Everything that has a name is noun. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसके कुछ ना कुछ तो नाम होंगे जिसको हम पुकार सकते हैं, जिसको हम बुला सकते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? वो नेम को हम बोलेंगे नाउन. एवरीथिंग दैट हैज़ अ नेम इज़ नाउन. नाउ अगेन नाउन के भी फर्दर इट refers to 4 different groups or many. Now taking an example, noun refers to 4 groups, that is things, people, animals, places and so on. Coming to our first example under noun, first group is name of things. Now जैसे कि मैं बताऊं, जब आप खाने के लिए बैठते होंगे डाइनिंग टेबल पे, you can observe many things around you on the dining table. अगर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल, बनानास, ब्रेड, चॉकलेट्स, तो ये सारी थिंग्स, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज अ नाउन. द फर्स्ट ग्रुप इज नेम ऑफ थिंग्स. अगर मैं आपको बोलूँ, आप जब रूम में सोने जाते होंगे, व्हेन यू एंटर योर रूम यू कैन ऑब्जर्व मैनी थिंग्स इन योर रूम एज वेल, जो कि फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं बेड, table, chair, books, flower, tree, pencil, school bag. These all are name of things placed under noun. The first group is name of things. Now what is things? These are things as they cannot eat, drink or move like people and animals. थिंग्स क्यों है? क्योंकि वो हमारे जैसे चल नहीं सकती, वो हमारे जैसे दौड़ नहीं सकती, वो हमारे जैसे खा नहीं सकती. दिस बिन कॉल्ड एज थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स एज दे कैन नॉट ईट, ड्रिंक और मूव लाइक पीपल एंड
animals. Now coming to the second group, that is name of the people. Noun के under again referring to the second group is name of people, be it girl, boy, men, doctor and so on. Now अगर मैं आपको पूछूं आप गर्ल हो या बॉय हो, और आप मुझे कोई ऐसे पर्सन का नाम बता सकते हो जो कि मुझे हेल्प करे ट्रैफिक रोकने में। अगर मेरी कार और के बस ट्रैफिक में फंस गई है तो आप मुझे कोई ऐसे पर्सन का नाम बता सकते हो जो कि मुझे ये ट्रैफिक से ईजीली बाहर निकाले। तो यू कैन से यस। तो कौन रख सकता है? पुलिसमैन। हु इज़ द पर्सन? पुलिसमैन। नाउ मैंने आपसे पूछा था उस इंसान का नाम, तो वो नाम क्या है? पुलिसमैन। सो यू कैन ईजिली रिलेट नेम ऑफ द पीपल। तो द नाम पुलिसमैन is called as a noun. Under which group? Under the name of the people. Now moving to the further group, that is name of the animals. Animals के भी नाम होते हैं, जैसे हमारे नाम होते हैं युग, प्रीति, आर्या, प्रिशा। वैसे एनिमल्स में भी, इंसान में भी जैसे नाम होते हैं वैसे एनिमल्स में भी नाम होते हैं। If I say in the picture is dog, pig, cat, those are names of the animals. वैसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिसके नाम रहते हैं। Now coming to the further group, that is fourth group, that is name of places. Now noun के under fourth group is name of places. प्लेसेस, जगह, जगह भी बहुत सारी रहती है। जैसे कि मैं बताऊँ, आप घर कब जाओगे? तो घर, आप स्कूल से छूटने के बाद आप जाओगे घर, तो स्कूल भी इट्स अ प्लेस एंड इवन घर भी प्लेस बोला जाएगा। घर से छूटने के बाद आप डायरेक्ट जाओगे, सॉरी स्कूल से छूटने के बाद आप कहाँ जाओगे? डायरेक्ट घर। या तो मैं बोल सकती हूँ घर से आप कहाँ जाओगे? अर्ली मॉर्निंग टू स्कूल। So this been referred as a place, but वो नाम, that is मैं बोलूँगी आप कहाँ जा रहे हो, आप बोलोगे स्कूल, so that is a noun, that is a name. आप कुछ ना कुछ तो बताओगे। जब मैं पूछती हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो you will be telling me, you will be answering me, I am going to school. So school is a place, but again school नाम भी है, so the name of the place, that is school. Now school, home, America हो गया, name of the cities, name of the countries also been called as the name of the places. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, इंडिया, चाइना, those been also called as places. Now I hope आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा। Now further moving to this topic, I am ending this topic by in short conclusion, that is nouns. Nouns के अंदर मैंने बताया था 4 ग्रुप्स, जो कि है people, animals, places and things. और भी बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं इसमें, but to make you clearly understand, हम इसी एग्जाम्पल्स में से ये वीडियो रेफ़र करके ये टॉपिक हम आसानी से समझ लेंगे। नाउ डन फॉर द डे, एंड फॉर द मोर प्रीवियस एंड फॉर द मोर फर्दर ग्रुप्स वी विल बी रेफरिंग टू आवर टेक्स्ट बुक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।